ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماہین ہاتھوں میں پھولوں کا تھال لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی چچا زاد بہن کی آج مہندی تھی۔ مسٹرڈ کلر کے غرارے پر بھاری دبکے کے کام والا دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے اور ہلکے میک اپ میں بھی وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیسے کسی کی نظر لگ گئی کہ پہلی سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی سے اترتے ہی اس کا پیر اتنی بری طرح سے پھسلا کہ اسے لگا اب کچھ نہیں بچا۔ تھال سے گلاب کی پتیاں ہوا میں بکھری، مہندی کا پیالہ زمین کی طرف لڑکنے لگا اور وہ خود ہوا میں معلق سی گھومتے سر کے ساتھ گرنے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے کسی نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی کی شرٹ کو گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سانس بے ترتیب اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ ہیلو مس، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نرمی سے تقریباً 2 سے 3 بار پوچھ چکا تھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ خوف سے کانپتے ہوئے اس کے ساتھ چپکی رہی۔ ہادی خانزادہ بے بسی کی انتہا پر خود کو محسوس کیے جا رہا تھا۔ اس کی پوزیشن کافی آکورڈ تھی۔ اگر کوئی آ جاتا تو بظاہر یہی دیکھنے کو نظر آتا کہ وہ دونوں چھپ کر ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے قبیلے میں کسی کو بہت اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا۔ اس کی مردانگی پر تو بات بنتی ہی، الٹا لڑکی بھی بدنام ہو جاتی۔ وہ اسے اسی طرح سے تھامے کھڑا تھا کہ اس کے دونوں بازو ماہین کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور وہ خود ایک جوان مرد کے سینے سے لگی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ یا خدا، اس وقت کوئی یہاں پر نہ آ جائے، ورنہ میڈم کے ساتھ ساتھ میری عزت کا بھی فالودہ بن جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ ایسی صورتحال تو فلموں میں ہوتی ہے کہ لڑکی گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ اچانک اس خیال کے آتے ہی اسے زور کی ہنسی آئی اور اس نازک صورتحال میں بھی اس کے منہ سے ایک چٹکلا سا نکل گیا۔ مانا کہ میں بہت ہینڈسم ہوں اور اتنا ہی پسند آ گیا ہوں تو رشتہ بھیج دیتا ہوں۔ ابھی وہ بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ ماہین ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، آنکھیں پٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر لڑکھڑائی، اور اگر ہادی نہ ہوتا تو شاید وہ دوبارہ گر جاتی۔ دور رہو مجھ سے، اس نے خود کو ہادی کی گرفت سے نکالتے سخت لہجے میں کہا اور وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ نیچے صحن میں مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ سبھی دولہے کے گرد جمع تھے۔ مہندی لگانے کا وقت تھا اور کسی کو سیڑھی پر بیٹھی ماہین کی حالت کا احساس نہ ہوا۔ ہادی پلٹنا چاہتا تھا مگر پھر بھی اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ آپ اگر گرل کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھیں تو میں آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں اور کسی خاتون کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ ماہین نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مردانہ وجاہت، گھنی داڑھی اور مونچھ، ہلکا سا ساملا چہرہ اور اس پر نشیلی آنکھیں۔ وہ لمحہ جیسے تھم گیا۔ اگر وہ کچھ لمحے پہلے اس کا طنز نہ سنتی تو سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی کسی سفید گھوڑے پر سوار شہزادے سے کم نہیں لگا تھا۔ دل جیسے ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا، پسینے کی بوندیں چہرے پر چمکنے لگی، مگر پھر وہ سنبھل گئی۔ وہ اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے سیدھی ہوئی۔ ہادی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ کو دیکھا، پھر اپنی کتھئی آنکھوں میں غصہ بھرتے ہوئے بولی، بہت شکریہ آپ کا، اور پلیز میرا راستہ چھوڑیں۔ یا خدا، یہ ادا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میڈم، میں کب راستے میں کھڑا ہوں آپ کے؟ وہ حیرت سے بولا تو وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر جو کوئی بھی آپ اپنی حد میں رہیں۔ میرا نام ہادی خانزادہ ہے اور آپ کا؟ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں۔ یہ آپ ابھی کیا فضول گوئی کر رہے تھے؟ یقین کیجیے آپ اتنے بھی ہینڈسم نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھتے ہی مر جائے۔ ویسے کتنی خوش فہمی پال رکھی ہے نا آپ نے۔ مجھے خوش فہمی تو ہوئی تھی، آپ بھی تو میرے سینے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ اتنی اونچائی ہے بھی نہیں کہ آپ کسی بچی کی طرح ڈر جائیں۔ وہ اب بھی فل چڑھانے کے موڈ میں تھا اور وہ واقعی چڑھ بھی گئی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ مجھے اونچائی سے خوف آتا ہے۔ جب پھسلی تو مجھے لگا کہ آج میں مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے مرے آپ کے دشمن۔
वो घनी मूंछों के तले ज़ेरे लब मुस्कुराया तो माहिन ने ज़िद होकर कहा, आप क्या ये दुआएं हर लड़की को देते हैं? अब वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करते बोली, नहीं, बस जो सीने के साथ खुद ही आकर लग जाए उसी को कहने को दिल करता है। उसके अल्फाज सुनकर माहिन के माथे पर बल पड़ गए। वो लाजवाब सी हो गई और वहां से जाने ही लगी थी कि पीछे से हादी की आवाज़ गूंजी, आराम से, कहीं फिर ना गिर जाना। माहिन ने सुनी अनसुनी की और तेज कदमों से नीचे उतरी, मगर दिल तो वहीं रह गया था जहां कुछ लम्हे पहले उसकी धड़कन किसी और के सीने से हम आहंग हो रही थी। दिमाग में बस एक नाम की तकरार सी थी, हादी खानजादा, और दिल वो तो बस धड़के जा रहा था। ढोलक की तेज धाप पर खवातीन रक्सा थी, दूसरी तरफ दुल्हन की रस्में हिना चल रही थी। हर तरफ कह कहे, मिली जुली आवाज़ें और रंग ही रंग थे। माहिन के लिए गांव की पहली शादी थी। वो पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। अपनी चचाजाद बहन की शादी में शिरकत के लिए आई थी और कोने में खड़ी उन तमाम मनाजिर को बहुत इंजॉय कर रही थी। दिल में कुछ अजीब सा दर्द, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो उन सब की खुशियों में शरीक होने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ देर पहले वो हादी खानजादा से टकरा कर अपने अंदर अजीब सी गड़बड़ महसूस कर रही थी, मगर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था। अचानक फिजा चीखों से गूंज उठी। पहले एक जोरदार धमाका हुआ और फिर मुसलसल फायरिंग की आवाज़। ढोलक बजना बंद, गाने रुक गए, खवातीन के मुंह से चीखें निकल गई। अरे ये क्या हुआ? धमाका हुआ है? कोई मर गया क्या? बच्चों बच्चों, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। खवातीन ने दुल्हन को ढांप लिया। मेहंदी के थाल उछलकर ज़मीन पर गिरे, रंगीन चूड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर बिखर गई, गजरों के फूल फर्श पर बिखर गए। चीखो पुकार, भाग दौड़ और उस पर फजा में बार बार गूंजती गोलियों की आवाज़। माहिन एकदम से पत्थर हो गई थी। उसके कदम जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। फिर चंद लम्हों बाद खबर गूंजी, दूल्हे के दोस्त का भाई गोली से जख्मी हो गया है। अरे किसी ने गोली मार दी। कौन था वो? शहरयार खान। ये नाम सुनते ही माहिन की दुनिया जैसे रुक गई। शहरयार खान? वो धीरे से बड़बड़ाई। लब कांपने लगे, आंखें नम हो गईं और दिमाग फ्लैशबैक की तरफ चलने लगा। माहिन के माँ बाप के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी के रंग जैसे धुंधला गए थे। बाप एक हादसे में चला गया था और माँ सदमे में ही चल बसी थी। वो बस 18 बरस की हुई थी और अपने ख्वाब, अपनी किताबें और माँ के लिपटे दुपट्टे के साथ अपने चचा के घर आ गई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही असल हकीकत सामने आने लगी। चच्ची का मिजाज सख्त होता गया और चचा खामोश, और उनके बेटे शहरयार खान के मामलात ही पेचीदा थे। वो गज़ब का मगरूर, गसीला और ज़िद्दी था। पूरे मोहल्ले में उसकी दहशत थी। आए दिन लड़ाइयाँ, मार कुटाई, शोर शराबा। वो ना किसी की बात सुनता, ना किसी की इज्जत करता, और फिर बला का दिल फेंक लड़का था। चूँकि माहिन इंतहाई खूबसूरत थी तो वो बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गया। क्योंकि वो उनके घर ही रहती थी, इसलिए आते जाते वो उसे तंग करने लगा। उसका कई बार दिल चाहा कि चच्ची को उसके बारे में बताए, लेकिन फिर चुप कर जाती और अपने तौर पर उस मसले को हैंडल करने की कोशिश करती रहती। वो अक्सर उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगी। जब उसने धीरे धीरे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू किया तो वो परेशान हो गई। लेकिन वो तो अब खुलकर बोलने लगा था कि तुम तो अब मेरी हो। माहिन पहले पहल उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन वो धीरे धीरे खुलकर बात करने लगा। तुम जल्द मेरी दुल्हन बनोगी, बस तैयारी पकड़ो। ऐसे में माहिन का दिल घबरा जाता। वो खामोशी से पीछे हट जाती। कई बार उसने कह दिया, शहरयार मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो वो हंसता। उसकी हंसी जहर भरी होती। लड़की ज़ात हो, तुम्हारी मर्जी कब से मायने रखने लगी? तुम्हारा फैसला मेरे अब्बा और अम्मी करेंगे। उसकी बातें सुनकर माहिन का दिल टूटता, पर वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती।
जब वो कॉलेज जाती, शहरियार रास्ते में खड़ा होकर घूरता, कभी साथ चलने की जिद करता और कभी रास्ता रोक लेता। ये सब तुम पढ़कर क्या करोगी? डॉक्टर बनोगी, वकील या सेठनी? छोड़ दो ये ख्वाब, बस अब घर में बैठने का वक्त है। एक दिन उसने साफ कह दिया, तुम्हारा कॉलेज का यह आखिरी साल है, उसके बाद तुम शहर जाकर मजीद नहीं पढ़ोगी। जितना पढ़ लिया था काफ़ी है, अब शादी की तैयारी करो। माहिन की आंखें भर आईं। वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, बस अपनी माँ का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। वो टीचर बनना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, उनकी ज़िंदगी संवारना चाहती थी। लेकिन शहरियार वो सब बर्बाद करने के दर पे था। फायरिंग की आवाज़ से वो एकदम हाल में वापस आई तो उसका बदन कांप रहा था। वो एक सतून के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। हादी खानजादा ने दूर से उसे देखा। उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी साफ लिखी थी। वो इसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि किसी ने आवाज़ दी, शहरियार खान ने सीधी गोली चलाई है। तो हादी एकदम तेजी से भागता वहां से जाने लगा। लोग भाग रहे थे, पुलिस को फ़ोन किया जा चुका था, हुजूम बिखर चुका था। माहिन की आंखों में जैसे बारिश बरसने को थी। उसका दिल चाहा वो चीखे, कुछ कहे, मगर वो सिर्फ कांप रही थी। अब भी सब यही कहेंगे ना कि वो सिर्फ गुस्से में था। अब भी चचा और चची उसी को सीने से लगाएंगे। अब भी कोई उससे नहीं पूछेगा। यही तो होता आया है हमेशा, वो कुड़कर सोचने लगी। शहरियार खान चचा का इकलौता वारिस, जिस पर वो जान छिड़कते थे। चची उसके हाथ चूमती थी। कोई कुछ कहे तो वो चिल्लाती थी कि वो बच्चा है, थोड़ा जिद्दी है, बस हमारे लिए तो दुनिया से बढ़कर है। अब वही लाडला इतना जिद्दी हो चुका था कि किसी मजलूम की जान ले चुका था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। फिजा जैसे मातम ज़दा हो चुकी थी। मेहंदी की रंगीनी अब स्याह याद बन चुकी थी। ढोलक की आवाज़ें, लड़कियों के कह कहे, गाने की लय, सब कुछ खामोश हो चुका था। सिर्फ सन्नाटा बाकी था, ऐसा सन्नाटा जो कलेजे चीर रहा था। उस फायरिंग की जद में गनी खानजादा आया, जो हादी खानजादा का सगा भाई था। खानदान का हर दिल अजीज, सीधा साधा, सबकी आंखों का तारा। उसके सीने में लगी गोली ने ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी छीनी, बल्कि दो खानदानों के दरमियान सदियों की दुश्मनी को ताज़ा कर दिया। खून जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बख्शा जा चुका था, अब फिर से नफरत की अलामत बन चुका था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही गनी खानजादा की सांसें रुक चुकी थीं। हादी अपने भाई के जिस्म पर सफ़ेद चादर देखकर कुछ देर साकित खड़ा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब सच है या कोई डरावना ख्वाब। फिर उसने आगे बढ़कर भाई का माथा चूमा। आंखों से एक भी आंसू ना गिरा, लेकिन जो आग उसके सीने में लगी वो सारी जिंदगी नहीं बुझनी थी। दूसरी तरफ माहिन के चचा के घर में कोहराम मच गया। चची गनी की मौत की खबर सुनकर बेहोश हो गई। चचा हक्का बक्का खड़े थे, जैसे जिस्म में जान ही ना हो। शहरियार फरार हो चुका था। वो गनी को मारने के फौरन बाद भाग गया और अब उसका कुछ पता नहीं था। अगले दिन चचा की बेटी की रुखसती थी। वो भी भाई के गम में नढाल थी। आंखों में नमकीन आंसुओं का समंदर, चेहरे पर अफसुर्दगी और दिल में बिछड़ने का दुख। रुखसती सादगी से की गई, ना बैंड बाजा ना रसूमात। लड़की को गले लगाकर चच्ची रोते रोते बेहाल हो गई और उसकी कज़न नम आंखों से शौहर के साथ रवाना हो गई। माहिन सब कुछ देख रही थी। उसके पेपर सर पर थे। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दिन रात घर के कामों में लगी रहती, चच्ची की देखभाल करती, उन्हें खिलाती, दवा देती। चच्ची जैसे हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। हर लम्हे बेटे का नाम लेती थी। चचा का हाल भी काबिल रहम था। वो सारा दिन बाहर जिरगे, पुलिस, रिश्तेदारों के चक्करों में फिरते और जब घर लौटते तो चेहरे पर गहरी थकन और बेबसी होती। अब घर में सिर्फ माहिन थी जो सबको संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में जो तूफान था वो कोई नहीं जानता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शहरियार इस हद तक जा सकता है। शहरियार और गनी के दरमियान किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी, ना पुरानी रंजिश, ना कोई झगड़ा। बस शादी में दोनों के दरमियान किसी बात पर हंसी मजाक शुरू हुआ
जो पल भर में संजीदगी में बदल गया, और शहरयार जो हर वक्त गुस्से की दहकती चिंगारी बना रहता था, उसने आओ देखा ना ताओ और उसे जान से मार डाला। बस एक पल में सब खत्म हो गया। अब हादी खानजादा के कबीले वाले सिर्फ एक बात पर अड़े हुए थे, शहरयार खान हमारे हवाले करो। चचा जो उम्र भर जिरगे भुगताते आए थे, अब खुद जिरगे के सामने खड़े थे, झुके सर के साथ। चच्ची रो रो कर नीम पागल हो चुकी थी, मगर जबान पर सिर्फ एक फिक्रा था, मेरा बेटा किसी के हाथ ना आए, वो मासूम है, वो मेरा खून है। ये तीसरा जिरगा था जो दो कबीलों के दरमियान बगैर फैसले के इख्तिताम पजीर हुआ। हादी का कबीला किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। खून का बदला सिर्फ खून से मुमकिन था या किसी कुर्बानी से। और तब वो फैसला आया जिसने चचा के कदमों तले से ज़मीन खींच ली, वन्नी में अपनी बेटी दो। ये सुनकर चचा का रंग उड़ गया। उनकी बेटी? अभी तो चंद दिन हुए थे उसे रुखसत हुए, वो तो अभी अपने शौहर के साथ जिंदगी का नया सफ़र शुरू कर रही थी। हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, वो अब हमारे इख्तियार में नहीं। हमें कुछ नहीं सुनना, या तो अपना बेटा हमारे हवाले करो या फिर अपने ख़ानदान की किसी लड़की को हमारे हवाले करो। चचा ने वक्त मांगा, फिर बात बढ़ चुकी थी। कबीले की इज्जत, सब कुछ दांव पर लग चुका था। चचा जब घर आए तो उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई जिंदा लाश हो। चेहरा जर्द, आंखों के नीचे हल्की और होंठों पर कपकपाहट। माहीन इस वक्त खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अंधेरी शाम, बोझल फिजा और दिल में एक अनजाना खौफ। चचा चच्ची के कमरे में दाखिल हुए। आवाज़ मध्यम थी लेकिन हर लफ्ज़ माही ने अपने कानों से सुना। बनी पर जिरगे ने फैसला दिया है। चच्ची के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली, क्या कह रहे हो तुम? हमारी बेटी तो रुखसत हो चुकी है। चचा ने हाथ से सर थाम लिया। वो नहीं मान रहे, या तो शहरयार को दो या फिर खानदान की कोई लड़की। तो क्या तुम माहीन को? चचा ने सर झुका लिया। वो हमारे साथ रह रही है और अब वही हमारे खानदान की वाहिद लड़की है। माहीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। सांस जैसे रुक गई हो, दुनिया जैसे किसी अंधेरे कुएं में धंस गई हो। वो दरवाजे से चंद कदम के फासले पर खड़ी थी, मगर जैसे उस फासले ने सदियों की दीवार खड़ी कर दी हो। एक लम्हे में उसके सारे ख्वाब टूट गए। तो क्या वो शहरयार की गलती का खमियाजा भुगतने के लिए कुर्बानी का बकरा बनने जा रही थी? वो जिस जुर्म में शरीक नहीं थी, उसकी सज़ा उसे मिलने वाली थी। आंसू किसी इजाज़त के बगैर बहने लगे। दिल फटने को था। वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गई, सर घुटनों में दे दिया और सिर्फ एक फिक्रा बार बार जहन में गूंज रहा था, वन्नी, मुझे वन्नी किया जाएगा। मगर वो शहरयार जैसे बदफितरत लड़के की खातिर अपनी जिंदगी की खुशियों को दांव पर क्यों लगाए? बार बार उसके दिल से आवाज़ उठती तो वो अपने कमरे में टहलने लगती। बाहर बादल जोर से गरज रहे थे और मौसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। अभी शाम होने में कुछ वक्त बाकी था। चचा अभी तक घर नहीं लौटे और चच्ची दवाई के ज़ेरे असर सो रही थी। मौका अच्छा था, लिहाजा उसने घर से भागने की ठानी कि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो ना भागती तो आज कल में उसका फैसला हो जाता और वो वन्नी हो जाती, जो उसे किसी भी सूरत कबूल नहीं था। लिहाजा उसने एक बड़ी सी चादर ली, उसमें खुद को अच्छी तरह से लपेटा और कमरे से बाहर निकल आई। बरामदे से सहन के दरवाजे तक आते आते वो बुरी तरह बारिश में भीग गई थी। उसने पलटकर एक दफ़ा इस घर को देखा जिसने उसके बुरे वक्त में पनाह दी थी, लेकिन आज यही घर उसके सर से छत छीन रहा था और उसे दुश्मनों के हवाले कर रहा था। तो उसके आंसू बारिश के पानी के साथ साथ जल थल होने लगे। उसने गहरी सांस ली और गेट खोलकर बाहर निकल आई। तेज बारिश में हर मंजर जैसे धुंधला सा हो गया। हवा में नमी थी और आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे किसी ने सदियों के दुख एक साथ उंडेल दिए हों। हर तरफ बारिश की तेज आवाज़ और उदासी उसके पैरों के साथ लिपटे हुए भागे जा रही थी। भागते भागते वो कई बार फिसली, लेकिन रुकी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रुकना मौत के बराबर था। अगर चचा को पता चल जाता कि वो घर पर नहीं है तो वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ते। अगर
वो उनके हाथ लग जाती तो फिर कोई गारंटी नहीं थी कि वो उसके साथ कोई नरमी का सलूक करते। वो इस लगी हुई बारिश में हाँफते कांपते सड़क तक आन पहुंची, लेकिन अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस बारिश में दूर तक सड़क पर चलना भी आसान नहीं था। या खुदा, मैं क्या करूं? वो बार बार आसमान की तरफ देखने लगती। सड़क पर कभी कभार रोशनी की एक झलक किसी गाड़ी की हेडलाइट से नमूदार होकर फिर गायब हो जाती। उसने सड़क पर नंगे पैर भागना शुरू कर दिया। बारिश की वजह से उसके सारे कपड़े गीले होकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। वो बार बार डर कर मुड़कर पीछे देखती कि कहीं चचा उसके पीछे ना आ रहे हों, और वो किसी सूरत उनके हाथ नहीं लगना चाहती थी। एक गलती जो उसकी थी ही नहीं, उसकी सज़ा वो क्यों भुगते? वो बार बार बस यही सोचते हुए और ख़ुद को मोटिवेट करते चले जा रही थी। उसे खतरा था कि जिरगे के हतमी फैसले के बाद चचा उसे कबीले वालों के हवाले कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है, कमज़ोर है और खामोश है। और मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन ये जुल्म चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने सोच को और मजबूत किया, लेकिन मुसलसल बारिश में भीगते हुए सड़क पर दौड़ना अब उसके लिए आसान ना रहा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। दिल तेजी से धड़क रहा था। बारिश मजीद तेज हो चुकी थी। तभी अचानक सामने से एक बड़ी जीप की हेडलाइट्स उसकी आंखों में चमकी। वो एकदम सड़क के बीच जा खड़ी हुई और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। जीप एकदम से रुकी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई रहमदिल शख्स उसे शहर तक छोड़ देगा। वो फौरन ही दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई, मगर जो ही उसकी नज़रें ड्राइविंग सीट पर गईं, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हादी खानज़ादा, वही आंखें, वही चेहरा, मगर एक नरम सा तासुर। उसके दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। चेहरे पर नकाब था, मगर वो जानती थी कि हादी उसे नहीं पहचान पाएगा। मगर हादी उसकी आंखों के रंग की वजह से एकदम पहचान गया। भला वो ये आंखें कैसे भूल सकता था जिन्होंने सीढ़ियों पर उसके साथ आंख मचोली खेली थी। सीढ़ियों पर उसे उलझती लड़की की कत्थई आंखें भुलाए जाने के काबिल नहीं थी। वो जीप चलाते हुए गहरी सांस लेकर बोला। बारिश के कतरे शीशे पर रक्स कर रहे थे, मगर माहिन की आंखों में खौफ के साए छा चुके थे। कहाँ जाना है? हादी ने नरम लहजे में पूछा। माहिन कुछ लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे मेन रोड पर उतार दे। हादी ने हैरत से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ ही दूर गए थे कि सामने एक और जीप सड़क किनारे खड़ी नजर आई। हादी एकदम से ब्रेक लगा गया। माहिन का सर जोर से डैशबोर्ड से टकराने वाला था। एकदम हादी ने डैशबोर्ड पर अपना हाथ रख दिया तो उसका सर इसके हाथ से टकराया। वहीं वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। अगर मेरा हाथ जान की अमान पाए तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सामने मेरे आगा जानी खड़े हैं, मुझे वहां जाना है। तो माहिन एकदम से पीछे हटकर बैठ गई। उसका नकाब चेहरे से हट गया था। हादी की आंखों में एक लम्हे को हैरत छा गई। वो खामोशी से उसके चेहरे को देखकर एकदम से अपनी जीप से उतरा, क्योंकि दूसरी जीप में उसके वालिद के साथ साथ उसकी माँ और बहनें भी बैठी थीं। गाड़ी से निकलकर वो उनकी तरफ बढ़ा। अब्बा, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों रुक गए? गाड़ी खराब हो गई है, 1 घंटे से खड़े हैं। तो मेरी गाड़ी में आ जाएं, वहां बैठें। हादी की बात पर माँ का चेहरा तपते अंगारे की मानेंद हो गया। तुम्हारी गाड़ी में दुश्मन की बहन बैठी है और तुम हमें उसके साथ बैठने का कह रहे हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हादी उस बात पर हैरान हुआ कि किसकी बात कर रही थी। वो फौरन बोला, अम्मी, ये किसकी बात हो रही है? यही जो तुम्हारे साथ बैठी है, ये शहरयार खान की कज़न है, वही लड़की जिसे वनी करने की बात जिरगे में हुई थी, लेकिन इसका चचा नहीं मान रहा। हादी की आंखों में एक लम्हे को झटका सा आया। उसने पीछे देखा। जीप में बैठी वही लड़की, वही जिसकी आंखों में मासूमियत थी, और आज वो उसके दुश्मन की कज़न निकली थी। आगा जानी ने खामोशी से हादी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में जैसे बिजलियां कूद गई। फोन करो उनके घर पर और कहो अगर लड़की को वन्नी करना है तो ठीक है, वरना जब तक शहरयार हमारे हवाले नहीं होगा, ये लड़की हमारे कैद खाने में रहेगी।
हादी ने इस बात में सर हिलाया। वो वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके कदम अब पहले से भारी थे। गाड़ी में बैठकर उसने गियर बदला और जीप एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। माहिन की नजरें उसके चेहरे पर थी। वो हर हरकत को बगौर देख रही थी। उसने महसूस कर लिया था कि उन लोगों ने उसे पहचान लिया है। उसकी नजरें पीछे की तरफ मुड़ी। वो जीप का दरवाज़ा खोलकर भागने ही लगी थी कि एकदम से हादी ने उसकी कलाई थाम ली। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी तुम्हारी। खबरदार जो यहाँ से हिली भी, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि माहिन के वजूद में कब का पहाड़ दौड़ गई। उसने लरसते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़े। क्यों? हादी ने दुरुस्त लहजे में पूछा। वो मिनमिनाते हुए बोली, बहुत सख्त पकड़ा है, मुझे दर्द हो रही है। हादी ने एक लम्हे को उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में आंसू थे, दर्द, बेबसी, खौफ और सब कुछ। उसने फौरन कलाई छोड़ दी। माही ने अपनी कलाई को थामा। वहां निशान बन चुका था। हादी ने उसकी कलाई के सुर्ख निशान को देखा और आंखों में उदासी फैल गई। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मैंने कहा ना मुझे यहीं उतार दें। खामोशी से बैठी रहो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद। माही ने दांत पीसते हुए कहा, तो मत सुने, लेकिन मुझे यहां उतार दे। हादी ने एक लम्हे को उसे घूरा, फिर होंठ भींच लिए। बारिश अब थम चुकी थी, मगर उनके बीच जो तूफान था उसका आगाज हो चुका था। जीप सुनसान रास्ते पर रमा दमा थी। जीप की रफ्तार मुसलसल तेज हो रही थी। माहिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो हादी के गुस्से से डरकर चुप हो गई, मगर आंखों से बहते आंसू अब थमने को नहीं आ रहे थे। वो चाहकर भी ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ चुकी है। क्या अब उसकी किस्मत यही थी? क्या जिल्लत भरी जिंदगी, कैद, खौफ और तन्हाई अब उसका मुकद्दर बनने वाले थे? हादी का फोन बजने लगा। उसने खामोशी से फोन की स्क्रीन को देखा। आगा जानी का नाम जगमगा रहा था। उसने बाएं हाथ से फोन कान से लगाया। जी अब्बा। दूसरी तरफ से गहरी और परेशान सी आवाज आई। कहाँ ले जा रहे हो उसे? मैं उसे हवेली ला रहा हूं। क्या हुआ? आगा जानी की आवाज कुछ ज्यादा सख्त हो गई। वापस मुड़ो, उसे हवेली लाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ शदीद गुस्से में भरी बैठी है। कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका बाद में पछतावा हो। बेहतर यही है तुम उसे डेरे पर ले जाओ। हादी ने हल्की सी सांस ली, जैसे किसी अनजाने खदशे की तस्दीक हो गई हो। ठीक है, जैसा आप कहें। हमने उसके चच्चा को इत्तला दे दी है, देखते हैं अब वो क्या करते हैं। फिलहाल तुम बस एहतियात से काम लेना। फोन बंद हुआ तो हादी ने जीप का रुख खामोशी से मोड़ लिया। अब वो सीधा डेरे की तरफ जा रहा था। डर और सन्नाटा माहिन के अंदर बोलने लगा था। उसे अंदाजा था कि अब वो दुश्मन कबीले की किसी वीरान कमरे में कैद होगी, और यही हुआ। जीप एक पुराने मिट्टी से अटे अहाते के सामने रुकी। गेट के बाहर लालटेन की मध्यम रोशनी झूल रही थी। जंगल के बीच बना ये डेरा काफी वीरान था। गहरा सन्नाटा उसे और भी डरावना बना रहा था। हादी ने जीप का दरवाजा खोला, बाहर निकला और फिर पीछे मुड़कर कहा, उतर जाओ। माही ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। हादी के दो आदमी वहां पहले से मौजूद थे। उनके चेहरों पर सख्ती और बेरहमी थी। इसे अंदर ले जाओ और बंद कर दो, किसी को अंदर ना जाने देना, इजाजत के बगैर। डेरे की सिक्योरिटी बढ़ा दो। हुक्म की तामील हुई और माहिन को एक नीम तारीक कमरे में धकेल दिया गया। दरवाजा बंद होते ही ताला लगा दिया गया। कमरा छोटा था, सिर्फ एक खिड़की, वो भी ऊंची, एक पुरानी चारपाई, एक मिट्टी का जग और दीवार पर एक कमजोर सा बल्ब। माहिन दीवार से लगकर बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे दफना दिया गया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू रवां और जहन में हर तरफ अंधेरा। उसने सोचा क्या वाकई मैं बच पाऊंगी या यहीं खत्म हो जाएगी उसकी जिंदगी की कहानी। कुछ देर बाद हादी ने अपने कजन जहांगीर को आवाज दी, जो डेरे के कमरे के पास खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। ओए जहांगीर, अंदर जाके लड़की को पानी दे आ, पानी का जग खाली होगा शायद। जहांगीर ने बमें चढ़ाई, लेकिन आंखों में चमक आ गई।
ठीक है भाई, दे आता हूँ। वो एक जग पानी लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे दरवाजे के करीब हुआ, उसकी निगाहों में नापाक इरादों की परछाइयां गहरी होती गई। दरवाज़ा खुला, हल्की सी चुरचुराहट के साथ। माहीन चौंकी, वो फौरन पीछे हटी। जहांगीर दरवाजे में खड़ा उसे घूरने लगा, फिर अंदर आया। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। हाथ में जग था, लेकिन उसकी नजरें माहीन पर जम गई। पानी चाहिए? माहीन खामोश रही, सहम कर चारपाई से दूर होकर दीवार से लग गई। जहांगीर धीरे धीरे बढ़ा, जग में मौजूद पानी को एक पल के लिए घुमाया, फिर एकदम से जग को उलट दिया। सारा पानी माहीन के ऊपर गिर गया। उसके कपड़े गीले होकर बदन से चिपक गए और उसका जिस्म कांपने लगा। माहीन एकदम चीखी, मगर आवाज बाहर न गई। वो जमीन पर सिमट गई, घुटनों से सीना ढांप लिया। जहांगीर हंसा, घुटने टेक कर उसके करीब आ बैठा। अरे डरने की क्या बात है, तुम तो बहुत हसीन हो। उसने धीरे से उसके भीगे बालों की एक लट को छूने की कोशिश की। माहीन पीछे खिसकी, आंखें खौफ से फैल गईं और होंठ लरजने लगे। दूर हो जाओ मुझसे, वो चीखी। जहांगीर का हाथ तेजी से उसकी कलाई की तरफ बढ़ा और एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली। मैं देखना चाहता हूं कि तुम हमारी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करोगी। तुम तो बहुत नाजुक सी हो। माहीन रोने लगी, आंसुओं के साथ सिसकियां, कांपता हुआ जिस्म, लरसती आवाज। खुदा के लिए मुझे जाने दो प्लीज। उसी लम्हे दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। जहांगीर, क्या कर रहे हो तुम? हादी खानजादा की आंखें कहर बरसाती हुई जहांगीर को घूरने लगी। उसके चेहरे पर तनाव की कैफियत थी और आवाज में जलाल था। जहांगीर एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हटा और हकलाकर बोला, कुछ नहीं भाई, ये लड़की पागल हो गई है, पानी खुद अपने ऊपर गिरा लिया। माहीन यह सुनकर शौक की कैफियत में चली गई। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरत, बेबसी, सब कुछ था। हादी ने चंद लम्हे माहीन की आंखों में झांका, फिर सख्त लहजे में कहा, बाहर आओ जहांगीर, तुमसे कुछ बात करनी है। जहांगीर ने नजरें चुराते सर हिलाया। हादी ने एक कहर आलूद नजर से माहीन को देखा, जैसे उसे अभी तक शक हो, और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया तो जहांगीर उसके पीछे लपका। दरवाजा फिर बंद हुआ और फिर कुंडी लग गई। माहीन घुटनों में सर देकर सोचने लगी, क्या कोई मुझे बचाने वाला है या मैं सच में एक खिलौना बनने जा रही हूं। उस वक्त डेरे की छत पर बारिश उसके साथ साथ रोने लगी। डेरे के कमरे में उसे कई दिन गुजर चुके थे। सूरज निकलता, गुरूब होता, पर माहीन की दुनिया में कोई रोशनी नहीं उतरती थी। दीवार पर लटकता बल्ब जैसे उसके हाल का मजाक उड़ाता रहता था। वो टूटी चारपाई पर पड़ी अपनी जिंदगी के दिन गिन रही थी। कभी दरवाजे की कुंडी बजती तो दिल दहल जाता। वो हर कदम की चाप पर सहम कर दीवार से लग जाती कि न जाने अब कौन आ रहा है और किस नीयत से। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ गई, आंखों के गिर्द स्याह हल्के गहरे होते गए और बदन जैसे जान निकलने लगी। फिर एक दिन वो लम्हा आन पहुंचा जिसने उसे कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी। दरवाज़ा खुला और सामने हादी खानजादा खड़ा था। उसके साथ एक मकामी मौलवी और 2 उम्र रसीदा मर्द थे। उनके चेहरों पर रिवायती सख्ती थी। माहीन के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। उसने सवालिया निगाहों से सबको देखा। उसका निकाह मौलवी ने हादी खानजादा के साथ पढ़ाया तो माहीन के दिल ने तेज़ धड़कना शुरू कर दिया। ऐसे लगा जैसे वो सुन रही है पर समझ नहीं पा रही। आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसने कबूल है कहा। हादी खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। निकाह के बाद भी वो वैसे ही तन्हा जैसे पहले थी। रात के वक्त हादी वापस आया। हाथ में पानी की बोतल और खाना था जो उसने खामोशी से चारपाई पर रख दिया। फिर उसकी तरफ देखकर गंभीर लहजे में बोला, तुम रो क्यों रही हो? माही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे डर लग रहा है आपसे। हादी खानजादा ने अचंभे से उसकी तरफ देखा। सीरियसली, तुम मुझसे डर कर रो रही हो? मैं कहां से इतना खौफनाक लगता हूं तुम्हें? उसने करीब रखी शीशे में अपनी सूरत देखी, थोड़ा सा मुस्कुराया। माही ने नजरें उठाई मगर फौरन झुका ली।
वो दरअसल सब यही कह रहे थे कि मैं वनी में आई हूँ, आप मुझ पर बहुत जुल्म करेंगे, बहुत मारेंगे मुझे, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। वो हिचकियों के दरमियान कहती जा रही थी, लरसती आवाज़, कांपता हुआ बदन और आंखों में बेबसी की इंतहा। हादी की मुस्कुराहट उसे यूं देखकर मान पड़ गई। वो कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं ना जालिम हूँ और ना बेगैरत कि किसी बेकसूर लड़की पर हाथ उठाऊं। माहिन को उसकी बात पर हैरानगी हुई, फिर वो चारपाई के कोने पर अपना सर झुकाकर बैठ गई। हादी ने कुछ लम्हे उसकी हालत देखी, फिर उसके करीब आकर कालीन पर बैठ गया। ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर अंदर हवेली ले जाऊंगा। बस ज़रा अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारा निकाह मुझसे हो। वो तुम्हें नौकरानी बनाकर रखना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे चचा ने रो कर जब मेरे आगे हाथ जोड़े कि मेरी यतीम भतीजी से निकाह कर लें, क्योंकि बन्नी लड़की फिर हर मर्द की दस्तरस में होती है और मैं ये जुल्म उसके साथ होते नहीं देख सकता। पहले ही अपने बेटे की वजह से मैंने उसे बन्नी में देकर अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, और मैं ये जानता था कि तुम्हारे चचा की ये बात हवेली में कोई नहीं मानेगा, लिहाजा मैंने यहाँ पर तुमसे निकाह का बंदोबस्त किया और 1-2 दिन तक तुम्हें वहाँ हालात देखकर ले जाऊँगा। तो माहिन के दिल को जैसे करार सा आ गया, और फिर जैसे हादी खानजादा ने कहा था उसने वैसे ही किया और उसे हवेली ले गया। उसे अब निकाह कबूल करने पर अफसोस नहीं था। हादी के रवैये में सख्ती तो थी, मगर उसकी आंखों में वो दरिंदगी नहीं थी जिसका जिक्र सबने किया था। वो अब उस शख्स की बीवी थी जिसे वो डरती तो थी, मगर उस पर सबसे ज्यादा एतबार भी करने लगी थी। कशमाला ने जब हादी के साथ हवेली के अंदर एक लड़की को आते देखा, और फिर जब वो माहिन को लेकर कमरे में दाखिल हुआ और अपना दरवाज़ा बंद किया, तो कशमाला के तन बदन में आग लग गई। उसे पता चल चुका था कि हादी उससे निकाह कर चुका है, मगर वो ये जानती थी कि वो उसे लेकर कभी हवेली नहीं आएगा। लेकिन अब उसे हवेली में देखकर जले पैर की बिल्ली की तरह उसके कमरे के सामने फिरने लगी। वो हादी खानजादा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो उससे शादी के ख्वाब देख रही थी, लेकिन अपने ख्वाबों को यूं चकनाचूर देखकर उसी लम्हे कशमाला ने दिल में फैसला कर लिया था कि माहिन को इज्जत के साथ यहाँ रहने नहीं देगी। अगली सुबह होते ही पूरी हवेली को पता चल चुका था कि हादी ने माहिन से निकाह कर लिया है, तो पूरी हवेली में जैसे कयामत बर्पा हो गई। हादी खानजादा की माँ और बहनें फौरन कमरे में आईं ताकि उसे मार कर बाहर निकाल सके, लेकिन जब हादी को कमरे में उसके साथ देखा तो उन्हें चुप सी लग गई। दूसरी तरफ ये खबर जहांगीर के लिए भी शदीद कोफ्त का बाइस बनी। जब कशमाला ने उसे बताया तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने जहांगीर को उकसाया कि भला एक बनी लड़की को हवेली में बहू का दर्जा कौन देता है, इस पर तो सभी का हक होता है। तो उसकी बात सुनकर जहांगीर की आंखों में एक शैतानी चमक पैदा हुई, तो कशमाला के दिल को ठंडक पहुंची कि उसका तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। लेकिन बनी होते हुए भी उसे हवेली में सारी मराहत हासिल होने लगी, तो कशमाला सुलग उठी। उसने अपनी माँ से मशवरा किया कि अगर हमने कुछ ना किया तो वो लड़की हादी की बीवी नहीं, एक दिन इस हवेली की बहू कहलाएगी। माँ ने खामोशी से बेटी को देखा और उसकी हाँ में हाँ मिला दी। 1 हफ्ते बाद हवेली में हंगामा खड़ा हो गया। जब हादी की बहन की शादी के जेवरात चोरी हो गए तो कशमाला ने फौरन माहिन पर इल्ज़ाम लगा दिया, बल्कि उसके कमरे की तलाशी लेकर कपड़ों की अलमारी से जेवरात बरामद करके सबके सामने रख दिए। तो माहिन रोती सिसकती रही, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। हादी की माँ बड़ी बेगम ने माहिन को खूब मारा, उसका जिस्म नीलो नील कर दिया और फिर उसे हादी के कमरे से निकालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। हादी उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन कशमाला फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। हादी घर आया तो माहिन को कमरे में ना देखकर फिक्रमंद हो गया, लेकिन जब माहिन पर लगे इल्ज़ाम के बारे में उसे पता चला तो वो फौरन स्टोर रूम में गया। दरवाज़ा खोला तो वो फर्श पर बैठी थी, जर्द चेहरा, नम आंखें, झुका सर। क्या तुमने कुछ लिया? माही ने हिचकियों में कहा। नहीं, खुदा के लिए यकीन करें।
हादी ने कुछ नहीं कहा, पलट गया। कशमाला की रात जश्न में बदल गई। लेकिन अगली सुबह हादी ने घर के पुराने मुलाजिम को सबके सामने लाया, जिसकी ज़बानी पता चला कि यह सब उसे कशमाला ने करने का कहा था, ताकि माहीन को हवेली से निकाला जा सके। तो सबकी नज़रें कशमाला पर जा ठहरी और कशमाला को ऐसे लगा जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा हो। हादी ने गहरी नज़रों से कशमाला को देखा तो कशमाला का रंग फक पड़ गया। कशमाला का अंदर कुड़ने लगा। इस जिल्लत ने उसे पागल कर दिया तो वो बराह रास्त हादी के कमरे में गई। कब तक तुम इसे बर्दाश्त करते रहोगे? वो दुश्मन की बेटी है। हादी ने नजरें उठाई। और तुम क्या हो? मेरे अपने होकर मेरे दिल के खिलाफ काम करती हो। कशमाला के होंठ लरसने लगे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हादी, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें पहले कई बार बता चुका हूँ। मोहब्बत ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता कशमाला, तुम्हें यह बात समझ लेनी चाहिए। हादी के दो टोक बात पर कशमाला का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया, मगर वो नफरत में पागल होने लगी। अब उसने अगला वार प्लान करना शुरू कर दिया, क्योंकि माहीन को सिर्फ बदनाम नहीं करना था, बल्कि उसे हादी की नज़रों में गिराना भी था। उस रात शदीद खौफनाक तूफान आया। हादी अब तक ज़मीनों से घर नहीं लौटा था। माहीन अपने कमरे में तन्हा थी। उसका दिल बार बार बेचैन हो रहा था। वो ज़रा सा दरवाज़ा खोलती और बाहर झांक कर देखती कि शायद वो आ गया हो, लेकिन फिर मायूस होकर कमरे में टहलने लगती। यकायक दरवाज़ा धीरे से खुला। उसने चौंक कर देखा तो सामने जहांगीर खड़ा था, जिसकी नज़रों की हवेस उसे छुपी नहीं थी। वो दरवाज़ा बंद करने लगा तो एकदम से माहीन जैसे होश में आ गई और चीख कर बोली कि तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो और बिला इजाज़त मेरे कमरे में क्यों दाखिल हुए? तो वो एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगा। आज तन्हा हो, सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूँ। माहीन फौरन पीछे हटी। उसके नापाक इरादे जाहिर हो रहे थे। अरे पास आओ, हम भी तो पड़े हैं राहों में। ये कहकर उसने झपट कर माहीन की कलाई पकड़ी और उसे खुद से करीब करने लगा। माहीन की जोर से चीख निकल गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपनी कलाई छुड़ाने की तगोदो करने लगी और चीख कर बोली, दफा हो जाओ यहाँ से। इतने में पोर्च में हादी की मखसूस गाड़ी की आवाज़ जो ही कमरे में आई तो जहांगीर के कान खड़े हो गए। उसने माहीन का बाजू मजीद सख्ती से दबोचते गुर्रा कर कहा, मैं फिर आऊँगा और इस बार नाकाम नहीं रहूँगा। और जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसे देखते फौरन कमरे से बाहर तरफ भागा। मगर माहीन की सांस जैसे थम गई थी। दिल की धड़कन बेकाबू, जिस्म ठंडा और जहन में वही धुंध और फिर अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गई थी। हादी जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो उसे ज़मीन पर आड़ी तिरछी बेहोश पड़ी मिली। चेहरा जर्द, माथा पसीने से भीगा हुआ। उसने पल भर सोचे बगैर उसे उठाया और फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। कई घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो उसके हाथ में रिपोर्ट थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर हादी जिस लम्हे भर को पत्थर हो गया। उसके हाथ से रिपोर्ट छूट गई। वो चुपचाप बेंच पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में दबा लिया। वो क्या सुन रहा था? एक नई जिंदगी, उस वन्नी की गोद से जन्म लेने वाली। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, माहीन की आंख खुल गई और जैसे ही उसे खबर मिली वो बुरी तरह रोने लगी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और हादी के कदमों में बैठ गई। मेरे साथ जो कुछ उस हवेली में हो रहा है, आप कुछ जानते हैं? कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके होते हुए भी जहांगीर जैसे बदफितरत इंसान से महफूज नहीं। मैं जानती हूँ, एक वन्नी लड़की जब माँ बनती है उसके बच्चे भी उस नफरत के वार से महफूज नहीं रहते। अगर मेरे बतन से बेटी पैदा हुई तो उसकी क्या गारंटी है कि वो इस हवेली के मर्दों से महफूज रह सकेगी? हादी की आंखों में गुस्से की बिजलियां चमकने लगी। उसने आगे बढ़कर माहीन की गर्दन को दबोच लिया और गुस्से से कहा, ये क्या फजूल बातें कर रही हो? तो माहीन रोते हुए बोली, आज मेरी बातें आपको फजूल लग रही हैं, लेकिन जब यही बात आपकी बेटी आपके सामने करेगी तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन माहीन की बातों में ऐसा सच था जिससे इनकार मुमकिन नहीं था। कुछ दिन बाद उसने खामोशी से माहीन को साथ लिया और मुल्क से बाहर चला गया।
माहिन जब अपार्टमेंट में हादी के साथ दाखिल हुई तो कुछ परेशान और कुछ हैरान थी। ये कहाँ आ गए हम? उसने हैरत से पूछा तो हादी खामोश रहा। फिर कुछ लम्हों बाद बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उस हवेली में कोई नुकसान पहुंचे। ये सुनते ही माहिन एकदम से पागलों की तरह हंसने लगी। हादी एक लम्हे को घबरा गया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? माहिन ने आंखों में आने वाले आंसू जब्त करते कहा, मुझे लगा था शायद आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी औलाद की खातिर मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि मेरी वजह से उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन बेफिक्र रहें, मैं आपकी औलाद का पूरा ख्याल रखूंगी, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं मेरा भी बच्चा है। उसकी आंखों में दर्द उभरा, लेकिन चेहरे पर एक वकार था। हादी खामोश हो गया। कुछ लम्हों तक दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। फिर वो आहिस्ता से उसके करीब आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें यहाँ लाने का रिस्क बच्चे की खातिर नहीं लिया, मैं बच्चे की माँ को भी महफूज करना चाहता था। माही ने हैरत से उसकी तरफ देखा, आंखों में बेयकीनी थी। हादी ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। तुम तो मेरी पहली नज़र का इश्क हो, भला मैं तुम्हें पल पल रोता कैसे देख सकता हूँ? माहिन का दिल धड़कने लगा, आंखों में नमी बढ़ गई। उसने आहिस्ता से उसके सीने में मुंह छुपाकर सुकून की सांस ली, जैसे ये वो वाहिद जगह थी जहां वो महफूज थी, जहां उसे खौफ नहीं था, ना कोई साजिश, ना बदनीयत जांगीर था। बस वो, हादी और आने वाली जिंदगी जो इंतकाम से शुरू हुई थी मगर मोहब्बत की ज़मीन पर जा ठहरी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।